Hello dear students, our next derivation number 25, magnetic field due to a long straight current carrying wire. Okay, for this derivation we will use Ampere's circuital law. So first quickly revise what is Ampere's circuital law. It looks very cryptic, but at the end it is a very simple law. First we'll go through the statement and then we will understand this. Okay, the line integral of magnetic field B around any closed path is equal to mu naught times the net current threading through the loop. So integral closed, I told you what is this? This is closed integral. Closed integral B dot dl equal to mu naught times I, where I is the net current through the loop. So let's understand this better. Let's say you have three currents I1, I2 and I3 shown like this. Right, so I1, as I shown, I1 is perpendicular to this plane going inside, I2 is perpendicular to this plane coming out, and I3 is also perpendicular to this plane going inside. So if I imagine any loop, we call this kind of loop is Amperian loop. Right, जैसे वहाँ पे Gaussian surface होता था, यहाँ पे Amperian loop होता है. So मैंने एक loop, closed loop होना चाहिए ये, आप कोई भी loop डिजाइन कर सकते हो. Right, अब इस बिकॉज ऑफ दीज थ्री करंट्स यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी हर पॉइंट पे. इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट, राइट. कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी विच विल बी रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, राइट. आप अगर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे लो और उसका डॉट प्रोडक्ट डीएल, मतलब आप छोटे छोटे ऐसे करंट एलिमेंट निकालो, बी डॉट डीएल निकालो एंड इसको पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट करो. जस्ट ट्रैवर्स अलोंग दिस लूप and keep on doing this B dot dl, right, and find the overall sum which is like closed integral. So this B dot dl closed integral will eventually be equal to mu naught times the net current which is threading through this loop. अब इस लूप के अंदर threading through मतलब उसके अंदर कितनी करंट है? I1 और I3 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, they are coming out. So I1 plus I3 minus का I2 because I2 is in the opposite direction. So it will be mu naught times I1 plus I3 minus I2. This is the net current. So I think इस example से आपको visualize हो गया होगा कि what is actually Amperian circuital law. ठीक? Okay. अब इस law का use करते हुए हम लोग निकालेंगे magnetic field of a long current carrying straight wire at any point P on this loop. ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. दिस फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वायर, राइट. सो ये फॉर्मूला में डिराइव करना है एम्पियर सर्किटल लॉ से. अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज नहीं करोगे तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी. यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ वी अवॉइड इंटीग्रेशन एंड डू इट वेरी वेरी सिंपली. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डेरिवेशन. टू स्टार्ट विद वी आर टेकिंग अ long wire, ठीक है. Okay, I mean technically it is long means the wire is sufficiently long as compared to the point, the distance of the point from the wire, right. So current उसमें I flow कर रहा है, this as you can see. Okay, and there is a point P which is at a distance capital R from the wire, और इस point P पे we are interested to find out the magnetic field. ठीक है. तो क्या करेंगे हम? पहले एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करेंगे. एम्पीरियन लूप इमेजिन करेंगे विच इज सर्कुलर, ठीक है, विच इज सर्कुलर एंड हैविंग रेडियस आर पासिंग थ्रू पी एंड सेंटर्ड ऑन द वायर. दिस लूप इज सेंटर्ड ऑन द वायर. आपने एक सिमेट्रिकल ऐसे सर्कुलर लूप बना लिया. ये आपका हो गया एम्पीरियन लूप. नाउ इफ यू सी दिस पॉइंट पी, राइट, from this wire perspective, the position of point P, right, is kind of symmetric. क्योंकि long wire है तो जितना ऊपर wire है जितना नीचे है, right. और if you see this circle, this loop, all these points from the wire perspective are symmetrical. They all are at a distance R. If you imagine दिस इज अ वायर और ये मेरा सर्कुलर लूप है, इमेजिन. तो अभी ये सारे पॉइंट, राइट, जैसे मान लो सेंटर पे आप बैठे हो और आपके फ्रेंड्स जो हैं आपके चारों तरफ एक गोला मार के बैठे हुए हैं ऐसे सर्कल में, राइट.
तो आपके पर्सपेक्टिव से सब सेम डिस्टेंस पे, सब सिमेट्रिकल, वही चीज यहाँ पे भी है। तो इस एम्पीरियन लूप में जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी और उसके बाकी और पॉइंट, ये सबकी पोजीशन इस वायर के पर्सपेक्टिव से कैसे सिमेट्रिकल है? बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्री, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स। भाई जब मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है? बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर, और उस वायर के लिए सारे पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी सेम। बाइसिंग क्यों होगी? ये जगह ज्यादा, जगह कम हो, राइट? तो इसलिए सिमेट्री की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इट विल एवरीवेयर इट विल बी टेंजेंशियल टू द लूप। मतलब जैसे इस पॉइंट पे आप देख रहे हो तो ऐसे है, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो ऐसे, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो ऐसे, सब जगह ये टेंजेंशियल होगी, ठीक है? तो इस तरीके से हम ये, राइट, एक सेफ अजम्पशन ले रहे हैं। अजम्पशन क्या मतलब? इट्स लाइक फैक्ट कि इस एम्पीरियन लूप में सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी और टेंजेंशियल टू द लूप होगी, मतलब द डायरेक्शन विल बी टेंजेंट टू द लूप एट दैट पॉइंट, ठीक है? अब ये होने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिगर आउट दिस गाय, इंटीग्रल b डॉट dl। तो ये भाई एम्पीरियस सेकंड लॉ में एक चीज क्या है? b डॉट dl, राइट? इसको कैसे निकालेंगे? अब क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl, अब देखो, सो पहले तो ये b डॉट dl है, डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, dl वेक्टर का और b वेक्टर का। तो पहले तो इनका एंगल इमेजिन करना पड़ेगा, b वेक्टर और dl वेक्टर में एंगल कितना है। अब देखो, जैसे इस पॉइंट को लो, यहाँ पे b वेक्टर टेंजेंशियल है ऐसा, ठीक है, ठीक है, b वेक्टर ऐसा हो गया और dl वेक्टर भी ऐसा टेंजेंशियल है। ऐसे इमेजिन करो, ये मेरा वायर है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट, तो टेंजेंशियल टू दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ b, और dl एलिमेंट, dl डायरेक्शन क्या होता है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट जहां पे आप देख रहे हो dl में। तो करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे फ्लो कर रही है, b भी ऐसे है, तो क्या एंगल हुआ? 0। दूसरा मान लो पॉइंट यहां पे ले लो, इस जगह को ले लो, इस जगह ले लो, ये पॉइंट देख लो, तो यहाँ पे dl वेक्टर की डायरेक्शन करंट कैसी होगी? ऐसी होगी, और b भी ऐसी है, टेंजेंशियल। तो dl और b इस पूरे लूप में आप इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज b इज टेंजेंशियल टू द लूप, और जहां पे भी आप dl देखोगे, dl तो इट्स एनीवेज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। सो dl वेक्टर और b वेक्टर का एंगल हर जगह 0 है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा डियर, कि ये इंटीग्रल b डॉट dl में आप इसको b dl cos 0 लिख सकते हो, क्योंकि इट इज 0 एवरीवेयर। अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, b क्या है? अभी हमने बात करी सिमेट्री की वजह से b सब जगह सेम है, तो इट बिकम्स अ कांस्टेंट, इसमें चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये b इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? cos 0 हो गया 1, अंदर बचा सिर्फ dl। अब क्लोज इंटीग्रल dl क्या होता है? उस पाथ का सर्कमफेरेंस। क्लोज इंटीग्रल dl क्या होता है? उस पाथ का सर्कमफेरेंस। क्योंकि आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो? ये dl छोटे छोटे एलिमेंट जो है इनको इंटीग्रेट कर रहे हो, मिला के सबको साथ में जोड़ रहे हो, तो क्या मिलेगा? पूरा आपको सर्कमफेरेंस मिलेगा। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr। तो ये हो गया b इंटू 2πr, ये आपका वैल्यू आ गई b डॉट dl की, b इंटू 2πr। अब ACL, एम्पियर सेकेंड लॉ, क्या बोलता है? ACL इज व्हाट? एम्पियर सेकेंड लॉ। ये क्या बोलता है भाई? ये b डॉट dl आपका बराबर होना चाहिए किसके? म्यू नॉट टाइम्स i, वेयर i इज द नेट करंट। तो इस लूप में करंट क्या है? इस लूप के अंदर करंट क्या है? i, पूरी i करंट फ्लो हो रही है, तो यहां से i आ गया, म्यू नॉट टाइम्स i। b डॉट dl लिख दिया हमने b इंटू 2πr, b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i, तो यहां से b आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे है इसकी आप इमेजिन करोगे? डायरेक्शन के लिए आपको देखना होता है राइट हैंड थंब रूल। मतलब जैसे दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट इस तरफ, एक पॉइंट इस तरफ, P एंड Q। सो यूज योर राइट हैंड को लेना है, align your thumb in the direction of current, align your thumb in the direction of current, and your fingers should be towards the point where you are interested to find out the magnetic field। तो देखो कैसा हो जाएगा, ये फिंगर्स को कर्ल करो तो कैसा जाएगा? इनसाइड, राइट, इनसाइड। सो इट इज लाइक दिस। बट अगर आप पॉइंट इस साइड आ गया, मेरा पॉइंट इस साइड आ गया, तो अभी थंब ऐसा हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट नाउ यू हैव टू पुट इट लाइक दिस। सो इस केस में इट विल बी outside the plane, it will be inside the plane, right? So this is how you can find out the direction. Thank you very much.